ହେଲା। ଇଗ୍ନୋ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପାଠକ ପାଠିକା ମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆଜି BHIC 106 ର ବା ଦି ରାଇଜ ଅଫ୍ ମଡର୍ନ ୱେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ 1 ର ଶେଷ ୟୁନିଟ୍ ବା ୟୁନିଟ୍ 11 ସେଇ ଚାପ୍ଟରଟି ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଟା ହେଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ମେସନ୍। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ପୂର୍ବ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀକ୍ ସଭ୍ୟତାର ଉନ୍ମେଷ ହେଲା, ରୋମ ସଭ୍ୟତାର ଉନ୍ମେଷ ହେଲା ଏବଂ ଇଟାଲୀ ଇତ୍ୟାଦିର ନବଜାଗରଣ ଦ୍ୱାରା ତାର ସବୁ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଲା, ସେ ସମୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା ସଂକ୍ଷେପରେ କରିବା। ଯେ ଗ୍ରୀକ୍ସ ଥିଲା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମାନବୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସଭ୍ୟତା, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ର ଭାବରେ ବସବାସ ନ କରି ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ପରେ ପରେ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଦେଶ କରି ସେମାନେ ବସବାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଗ୍ରୀସରେ ଅନେକ ନଗର ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ନଗର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରଧାନ। ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ପାର୍ଟା ଏବଂ ଏଥେନ୍ସ। ଯଦି ସ୍ପାର୍ଟା ତାର ବୀରତ୍ୱ ପରାକାଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା, ଏଥେନ୍ସ ତାର କଳାକୃତି ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ତେବେ ଏଇଠାରୁ ଯେଭଳି ଗ୍ରୀସରେ ଗ୍ରୀକ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଏକତ୍ର ବସବାସ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏକତ୍ର ଜୀବନ ବିକାଶ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ, ତାରି ପ୍ରଭାବ ହିଁ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କି ୟୁରୋପରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉତ୍ଥାନ ଘଟିଲା। ତେବେ ୟୁରୋପରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉତ୍ଥାନ ହୋଇଥିଲା 1700-1800 ଶତାବ୍ଦୀରେ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ କାହିଁକି ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଲା, ଆମେ ଏଇଠି ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଯୋଉ ସମୟରେ ସାମନ୍ତବାଦ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିକଳିତ କରିଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଏକ ଜାତି, ଏକ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲା, ଏକତାର ଭାବ ଦେଖା ଦେଇ ନଥିଲା, ଭାତୃଭାବ ଦେଖା ଦେଇ ନଥିଲା, ମିତ୍ରଭାବ ସୁସମ୍ପର୍କ ଏସବୁ ନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ସାମନ୍ତବାଦ ସମଗ୍ର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତକୁ କବଳିତ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମୈତ୍ରୀ ଭାବନା, ଭାତୃଭାବ, ସୁସମ୍ପର୍କ, ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚିନ୍ତନ ଏସବୁର ଅଭାବ ଥିଲା। ଏବଂ 1516 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ୟୁରୋପର ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟତାବାଦରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସାମନ୍ତବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେଲେ। ଏଇଠି ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉତ୍ଥାନ ସାମନ୍ତବାଦ ଯୁଗର ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଗେଇ ନେଲା। ଏହିପରି ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମାନ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଐକ୍ୟବଦ୍ଧ କରି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟତା ଭାବ ଉଦ୍ରେକ କରିଥିଲା। ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଓ ପୋପଙ୍କର ପ୍ରତିପତ୍ତି ଅବସାନ ଥିଲା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଜାତାନ୍ତ୍ରିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇ ସାମନ୍ତବାଦ ଉପରେ ଗୋଟେ କୁଠାରଘାତ ଆଣିଲା, ସାମନ୍ତବାଦ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଯୋଉ ସମୟରେ କି କୃଷକମାନେ, କ୍ରୀତଦାସ ମାନେ, ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ତତ୍ପର ହେଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସେମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯଦିବା ସାମନ୍ତମାନେ ଦମନ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସଂଘବଦ୍ଧର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସାମନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ କଳହ ଲାଗିଥିଲା, ସାମନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ବିବାଦ ଲାଗିଥିଲା, ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ
कृषक मानू श्रमिक मानू एवं निम्न श्रेणीर लोक मानू बा कीटदास मानू विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करने गोटे सुवर्ण सुजोग आसीथिला जहा फल कि यही जनजागृति जातीयता भावधारार उन्मेष करी शक्तिशाली साम्राज्य व्यवस्थार उत्थान रे साहाय्य कला। आधुनिक जातीय राष्ट्र व्यवस्था परिकल्पनार बीज प्रथमे इटाली रे सेई मेकियाभेली फ्रांस रो बोर्डन इंग्लैंड रो हॉबर्स द्वारा प्रथमे प्रस्तुत करा जायतिला जो मानकर चिंताधारा समग्र पाश्चात्य जगत को उर्वर करिथिला तार राजनीतिक क्षेत्र रे। तेबे फलस्वरूप प्राथमिक पर्याय रे 8 गोटी राष्ट्र पाश्चात्य जगतर 8 गोटी राष्ट्र प्रथमे सेमानंकर राष्ट्रर उत्थान हेतिला बा राष्ट्रीय व्यवस्थार सेमानंकर उत्थान हेतिला। से 8 गोटी राष्ट्र हेले कि से ना गोटे हला स्पेन, द्वितीय हला फ्रांस, तापर हला इंग्लैंड, तापर रूसिया, ऑस्ट्रिया, प्रुसिया, पोर्तुगाल, स्वीडन। यही 8 गोटी राष्ट्र पाश्चात्य जगतर प्रथमे राष्ट्र व्यवस्था रे सेमाने पदार्पण कले। एहार अनेक काल पर अर्थात 1871 ख्रीष्टाब्द रे इटाली एवं जर्मनी तार जातीय राष्ट्र रे से परिणत हेतिला एवं एही दुई राष्ट्र भितर जे संघर्ष लागि रहितिला से सब इतिहास रे जदिबा उल्लेखनीय तथापि मध्य सेमानंकर राष्ट्र व्यवस्था पय सेमाने तत्पर थिले। तले जो सप्तदश बा अष्टदश शताब्दी रे जो राष्ट्र व्यवस्था थिला तार नीतिटा कोन थिला व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ यूरोपियन स्टेट सिस्टम अर्थात केंद्र यूरोप तथा विशेष कर जर्मनी रे प्रभुत्व धन जीवन क्षति करिथिबा जर्मनी रे जते सब बिता थिला समृद्धि थिला ताकू सब क्षति करिथिला 1618 मसियार गोटे 30 वर्षीय युद्ध बा 30 इयर्स वार एवं एही वार बा ए युद्ध अंत होला परे गोटे वेस्टफेलिया शांति चुक्ति स्वाक्षरित होला 1648 मसिया रे जो 1648 मसिया रु ही आरंभ होला यूरोप रे बा पाश्चात्य जगत रे राष्ट्रीय व्यवस्था। तबे वेस्टफेलिया चुक्ति ठारू आरंभ होइथिला पाश्चात्य जगतर एही राष्ट्र व्यवस्था आ जो ता पूर्वरु जो 30 वर्षीय युद्ध होइतिला 30 इयर्स वार ताहा एमिति भयानक युद्ध थिला एमिति भयंकर युद्ध थिला जहा कि ऐतिहासिक माने नेपोलियनिक युद्ध एवं प्रथम विश्व युद्धर विभीषिका सहित ताको तुलना करिसथि। प्रथम विश्व युद्ध पर्यंत एमिति कौनसी युद्ध होई नथिला जहा थिला सेई 30 वर्षीय युद्ध। तापरे जेतेबेले वेस्टफालिया शांति चुक्ति हेला सेठू राष्ट्र व्यवस्थार उन्मेष हेला बा पाश्चात्य जगतर राष्ट्र व्यवस्था आरंभ हेला। तेबे ए जो राष्ट्र व्यवस्था हेतिला एथिरे अष्टादश शताब्दी पर्यंत ए यूरोपीय माने बा पाश्चात्य जगतर अधिवासी माने पूरा विचलित हेतिले। एई समय काल मध्यरे दुई प्रकार राष्ट्र व्यवस्था आरंभ हेतिला गोटे हेला साधारणतंत्र आ गोटे हेला निरंकुश शासन। तेबे ए राष्ट्र व्यवस्थार मुख्यतः तीनोटी लक्ष्य थिला गोटे हेला सार्वभौम नीति गोटे हेला राष्ट्रकरण नीति गोटे हेला वंशानुक्रमिक कार्य बा न्याय्य अधिकार नीति। तीनोटी यार हेला मुख्य लक्ष्य सार्वभौम नीति राष्ट्रकरण नीति एवं वंशानुक्रमिक कार्य अधिकार नीति। गोटे हेला प्रिंसिपल ऑफ सोवरेनिटी आ गोटे हेला रीजन ऑफ स्टेट आ गोटे हेला डायनास्टिक लेजिटिमेसी प्रिंसिपल। तबे सार्वभौम अर्थ हेला सोवरेनिटी अर्थ हेला कोना एक निर्दिष्ट अंचल एवं एहार अधिवासी माननको ऊपर थिबा राष्ट्रर सर्वोच्च अधिकार अर्थात राष्ट्रर क्षमता जने राजा हो बा एक संसद हो बा एक राष्ट्रीय अधिकारी अमलातंत्र हेउ एमानक द्वारा प्रतिनिधित्व करा जाई पारे एहा कहा जाय सार्वभौमत्व। आउ गोटे नीति हेला कोन ना राष्ट्रकरण नीति। ये जो राष्ट्रकरण नीति ये हेला सार्वभौम सहित बा सार्वभौमर निकटर नीति नुहे कि ता सहित ये समकक्ष नुहे। ताले राष्ट्रकरण नीतिर राष्ट्र व्यवस्था रे
ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏପରିକି ନୈତିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥ ଠାରୁ ଗୌଣ ଅଟେ। ଇଏ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ ନା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାର ନୀତି ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାର ନୀତି, ଦି ଡାଇନାଷ୍ଟିକ ଲେଜିଟିମାସି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଇଏ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୀତି ବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୁଗରେ ଏକ ରାଜବଂଶକୁ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଅଧିକାର ସୂତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବାକୁ ନୀତିଗତ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଶୁଣା। ତେବେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାର ନୀତି ସେହି ବିଳମ୍ବିତ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାଂଶ ରୂପେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଲୋକପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମ ନୀତିକୁ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆଦରି ନେବାରୁ ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପତନ କଲା। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତିନୋଟି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ତାହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ କାହିଁକି ହେଲା, କାହିଁକି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ପ୍ରଥମେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉତ୍ଥାନ ହେଲା? ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁ କାରଣ ଦାୟୀ ଥିଲା। ଯୋଉ ସବୁ କାରଣ ହେଲା କ'ଣ ନା, ଗୋଟିଏ ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ନବଜାଗରଣ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ମେଷ ବା ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେବେ ଏସବୁ କାରଣକୁ ନେଇ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ମେଷ ହେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କାରଣଟି ଥିଲା କ'ଣ ନା ହୋଲି ୱାର ବା ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ। ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ଇସଲାମ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ବା ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ ବାରମ୍ବାର ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥାଏ। ଦୁଇ ଧର୍ମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏ ଯୁଦ୍ଧ ବାରମ୍ବାର ଲାଗିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ହେଇଥିଲା 1996ରୁ 1999 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଇଥିଲା 1147 ମସିହାରେ, ତାପରେ ହେଇଥିଲା 1199 ମସିହାରେ, ତାପରେ ହେଇଥିଲା 1202ରୁ 1204 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହିପରି ଭାବରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏ ଧର୍ମୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିଲା। ତେବେ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ ଯାହା ହେଉ ପଛେ, ଏହାର ରେଜଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ଯାହା ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦୁଇ ଧର୍ମ ଭିତରେ ବା ଦୁଇ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିଲା, ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଏକତାବଦ୍ଧ ଭାତୃଭାବ, ସମଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ଜାତୀୟତା, ଦେଶପ୍ରୀତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରସ୍ପର ଅନେକ ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ, ନୂତନ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ, ନୂତନ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ପରିଚୟ ହେଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ଧର୍ମ ହଉଛି ଏକ ଏବଂ ତାର ନୀତି ବି ହଉଛି ଏକ। ତେବେ ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଐକ୍ୟ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିଲା, ତାହା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ଏ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଥମ କାରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ। ସେ କ'ଣ ନା ଜନସାଧାରଣ ସଦାବେଳେ ସଂଘ ଭାବଦେବ ହୋଇ ବା ଏକାଠି ହୋଇ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ବା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରୁନଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଜଣକୁ ସମ୍ରାଟ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ କରି ବା ମନୋନୀତ କରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହୋଇ ବହି ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଇଏ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ। ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଲା କ'ଣ ନବଜାଗରଣ। ଆମେ ବିଗତ କ୍ଲାସ ମାନଙ୍କରେ ପଢିଛେ ଯେ ନବଜାଗରଣ ଯୋଗୁଁ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇଥିଲା। ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରକାଶନର ବିକାଶ ହେଇଥିଲା, ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାର ହେଇଥିଲା, ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଗତି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ମଧ୍ୟ ନବଜାଗରଣ ଯୋଗୁଁ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥାନ ହେଇଥିଲା। କେମିତି ହେଇଥିଲା ନା ନବଜାଗରଣ ଯୋଗୁଁ ବା ଜ୍ଞାନର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗୁଁ ଯୋଉ ସବୁ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ, ଲେଖକ, ସାହିତ୍ୟିକ, କଳାକାର, ସ୍ଥପତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜର
एकता भाव को जागृत करी राष्ट्र व्यवस्था रे समस्त मनोनिवेश करथिले एवं गोटे जातीयतावाद रे उद्बुद्ध हेबा पई से माने समस्त को प्रेरणा देथिले। ये थिला आउ एक कारण। आउ गोटे हला धर्म संस्कार आंदोलन आमे गला क्लास रे पढिथिले जे मार्टिन लूथर जेते बेले बाइबल को अधिक रु अधिक गवेषणा कले से विषय अनुध्यान कले एवं जानि परिले जे धर्मीय भावना तत्कालीन समाजर धर्मीय भावना कोन जीशु ख्रीष्टनकर महात्मा जीशु ख्रीष्टनकर चिंताधारा कोन बाइबल रे कोन वर्णित हिची किंतु गिरजाधीश माने धर्म नाम रे कोन प्रचार करूछंती ए सब को जेते बेले पाथ्य करी मार्टिन लूथर जेते बेले समाज रे सत्य कथा को प्रतिपादन करिदेले सत्य कथा को आरंभ करिदेले सेते बेले जदिबा प्राथमिक पर्याय रे प्रथम सोपान रे बा प्रथम पहाज रे जदिबा तत्कालीन समाज गिरजाधीशंकर चापरे ए सत कथा को ग्रहण करिया पय प्रस्तुत नथिला किंतु परवर्ती पर्याय रे मार्टिन लूथरंकर से वाणी समस्त को आकृष्ट करिथिला जेते बेले न्यू टेस्टामेंट रे मार्टिन लूथरंकर चिंताधारा नीतिवाणी धर्म माडी गुडी को प्रचारित हैला सेते बेले समस्त आकृष्ट होइथिले एवं समस्त मन रे गुटिए धर्मीय भावना प्रकृत धर्मीय भावना जागृत हैला जो धर्मीय भावना रु देश प्रीति जाति प्रीति राष्ट्र प्रीति जागृत होवा द्वारा सेमाने राष्ट्रीय व्यवस्था को आमंत्रण कले आउ से जमीदार मानक अधीन रे सामंत मानक अधीन रे वित्तशाली मानक अधीन रे जमीदार मानक अधीन रे रही सबुदिन पई पा सर्वदिन पई शोषित हेबाकू आउ पसंद कले नाही ताले धर्म संस्कार आंदोलन थिला एही राष्ट्रायत नीतिर बा पाश्चात्य जगतर राष्ट्र व्यवस्थार आउ गोटे कारण से बड़ी भाषा और साहित्यर उन्नति जेते बेले रोम एवं इटाली रो प्राचीन साहित्यर पुनरुत्थान हैला प्राचीन भाषार पुनरुत्थान हैला बा प्राचीन पांडुलिपिर पुनरुत्थान हैला एही नवजागरण जोगु से विशिष्ट मनीषी माने बा विशिष्ट पंडित मानक द्वारा जेते बेले प्राचीन साहित्य दर्शन शास्त्र उन्मेष हैला सेया को अध्ययन करी सेया को पाथेय करी सेही पाश्चात्य जगत रे अनेक महामनीषी माने महानायक माने बा जननायक माने जो माने विश्वविख्यात दार्शनिक माने थिले विश्वविख्यात साहित्यिक माने थिले से मानकर जन्म लाभ हैला किए थिले से माने मैकियावेली शेक्सपियर बैकन शशो एही परि अनेक महामनीषी माने जन्म ग्रहण करी सेतबेळर भाषा साहित्य को उन्नति करिथिले एवं जहा कि साधारण लोक मानकर मनरे गोटे जातीय प्रीति जागृत करिथिला तापर हैला आउ गोटे कारण कोन अर्थनैतिक सुच्छलता सेतेबेले सामंतवादर विलोप घटिबारु कृषक माने निजे निजे कृषि कार्य कले एवं निजे निजे कृषि कार्य करी निजे कृषि कर्म रे निजको मनोनिवेश करी निज स्वच्छंद रे निज परिवार प्रतिपोषण रे जो आनंद एवं जो लाभ पाइले ताहा ही आगामी दिन रे राष्ट्र व्यवस्था पाई एक पथ सुगम करथिला आउ तांको मानक सहित बा सामंत मानक पाखरे रही भर्सना सही कषण पेषण शोषण को सही निजर जीविका को गोटे विशृंखलित परिस्थिति रे रखिया पय से माने चाहिले नाही एवं जेते बेले कृषि रो उन्नति हला सेमानकर जीविका निवास परिवर्तन हला आस्ते आस्ते कृषि कार्य रु सेमाने कुटीर शिल्प भी आरंभ कले जो कुटीर शिल्प विकास रु लोकमानकर आर्थिक व्यवस्था रे एक विराट परिवर्तन हला जेबो सम्राट माने मध्य जनसाधारण को पई बा साधारण लोकमानक पई मुक्त वाणिज्य व्यवस्था पई आगे आसिले जहा ही अर्थनैतिक प्रगतिर गोटिए सुगम आरंभ हेतिला तबे ए जो राष्ट्र व्यवस्था कारण गुड़िक थिला बा ए सब कारण गुड़िक नै यूरोप रे राष्ट्र व्यवस्था आरंभ हला को राष्ट्र सब ना हमें तो पढ़िले स्पेन इंग्लैंड फ्रांस ए सब 8टी राष्ट्र प्रथमे राष्ट्रीय व्यवस्था आरंभ होइतिला ताला हमें गोटिए पर गोटिए देश आलोचना करिबा सब देश विषय तो आलोचना करि परिबानी जो जो गुड़िक इंपोर्टेंट राष्ट्र रही से विषय रे हमें टिके टिके आलोचना करिबा संक्षेप रे आलोचना करिबा तेणु प्रथमे हला स्पेन विषय रे हमें टिके आलोचना करिबा तेणु स्पेन 15श शताब्दी रे
स्पेन रो राजा थिले के से ना सम्राट फर्डिनांड जे कि विवाह करथिले रानी इसाबेला को। आमे भौगोलिक आविष्कार विषय रे आमे पढिथिले बा सी वॉयस यूनिट रे आमे पढिथिले जे जेते बेले कोलंबस विभिन्न स्थान को जाइथिले जल यात्रा करिवा पई सहाय्य मागिया पई किंतु समस्त तांको निराश कर देथिले एवं निजे जेते बेले स्पेन रो राजांकर द्वारस्थ हिथिले फर्डिनांडकर द्वारस्थ हिथिले सेते बेले फर्डिनांड राजी हिथिले ना ए जल यात्रा पई मु निश्चित सहाय्य करिवि एवं तांको ठारो आर्थिक सहाय्य नै कोलंबस तांकर 5टी तरी रे बा जहाज रे तांकर आरंभ करथिले यात्रा एवं तांको मध्य सहाय्य करथिले तांको रानी मध्य उत्साहित करथिले। ताहले स्पेन रो राजा फर्डिनांड एवं महारानी इसाबेला बा सम्राट फर्डिनांड एवं सामग्री इसाबेला जो समय रे फ्रांस रो राजसिंहासन रे अधिष्ठित हेले सेते बेले फ्रांस रो उन्नति ना साहित्य ठु आरंभ करी कलाकृति ठु आरंभ करी शिल्पानुष्ठान ठु आरंभ करी प्रत्येक थिरे स्पेन रो प्रगति आरंभ हेतिला एवं समस्त जनसाधारण फर्डिनांड को ऊपरे अतिशय खुशी हेतिले एवं तांकर शासन काल अति स्वच्छ थिला। एही समय रे यूरोप महादेश रे गोटे हेतिला जो 30 वर्षीय युद्ध आमे टिके पूर्व जो आलोचना करथिले ए जो 30 वर्षीय युद्ध हेतिला ए 30 वर्षीय युद्ध जर्मनी रो संपूर्ण धर्मीय बुझावणा को संपूर्ण रूपे निराश कर देथिला। नवजागरण आंदोलन ख्रिस्टियन समाज को जदियो कैथोलिक प्रोटेस्टेंट एई भली अनेक संप्रदाय रे विभक्त करथिला जते बेले धर्म संस्कार आंदोलन हेतिला बा नवजागरण आंदोलन हेतिला एई समय मार्टिन लूथरनकर तांको मतवादी माने जो कैथोलिक धर्म बा ख्रिस्टियन जगत रु अलगा हे गेले दुई भाग हे गेला ख्रिस्टियन संप्रदाय गोटे हला कैथोलिक गोटे हला प्रोटेस्टेंट तापर मध्य कैल्विन तांकर जो मत देले सी आउ गोटे संप्रदाय हला कैल्विनिय मतवाद एंगुल जो सी गोटे मत देले सी हला एंगुलिय मतवाद एई भली ख्रिस्टियन जगत विभिन्न संप्रदाय रे सब विभक्त हला बा भाग भाग होई विभक्त हे गेला। तबे मुख्य हला कैथोलिक या गोटे हला प्रोटेस्टेंट। तले जर्मनी को नै जो 30 वर्ष युद्ध हेतिला उत्तर जर्मनी रे अधिवासी माने थिले कैथोलिक धर्मावलंबी दक्षिण जर्मनी रे जो अधिवासी माने थिले से माने थिले प्रोटेस्टेंट। तेबे सेमानंक मध्य रे जे संस्कृति से सभ्यता मध्य रे सदा बेले शत्रुता लागि रहिला एवं से देश गोटे अधोगति देकी गति कला जा फल रे सेही 1618 मसिया रे जो 30 वर्षीय युद्ध हेतिला ताहा समग्र राष्ट्रीय व्यवस्था को पूरा जटिल कर देथिला कठोर कर देथिला अतिशय विशृंखल कर देथिला जहा को कि जर्मनी रो गोटे गृह युद्ध कहले अत्युक्ति होबो नाही। तबे ए जो युद्ध हेतिला आमी टिके पूर्व आलोचना करथिले यहा अति भयंकर युद्ध थिला। ए युद्ध जर्मनी रो धन जीवन रो एमिति क्षति करथिला जहा कि अन्य कौन से युद्ध समय रे ए भली क्षति हे नथिला। ये युद्ध रे ऑस्ट्रिया हो डेनमार्क स्वीडन फ्रांस स्पेन हॉलैंड समस्ते अंशग्रहण करथिले हे जर्मनी एवं बेहोमिया ही गुरुतर अर्थनैतिक संकटर सम्मुखीन हेतिला। यार मुख्य कारण कौन थिला ताल ए जो 30 वर्ष युद्ध हला यूरोप महादेश रे ए जो युद्ध 30 वर्ष धरि लागिला यार मुख्य कारण हला जे पाश्चात्य जगत रे स्पेन रो हाब्सबर्ग राजवंश ओ फ्रांस रो बुर्ब राजवंश मध्य रे कहार प्राधान्य अधिक रहिबो स्पेन राजवंश रो अधिक रहिबो ना फ्रांस रो राजवंश रो प्राधान्य अधिक रहिबो। द्वितीय हेला लोक माने रोमान कैथोलिक बा प्रोटेस्टेंट बा उभय धर्म कहा को ग्रहण करिवे ए दुईटे जाक थिला गोटे विवादीय कथा। ताले पाश्चात्य जगतर को राजवंश मुख्य हबो एक दुई रे हेला लोक माने को नीति की ग्रहण करिवे
ये हला 2 एहाकु भित्ति करी आरंभ होइथिला एही 30 वर्षीय युद्ध जो युद्ध समग्र यूरोप महादेश को पूरा थरहर करुथा तेबे ए जो युद्ध हला ए युद्धर अन्य कारण गुडी कहला कोन ना धर्मीय कारण राजनीतिक कारण एवं तत्कालीन कारण धर्मीय कारण आमे पढुथिले कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट मध्यरे गोटे जो धार्मिक युद्ध होइथिला एवं जो राजनैतिक स्वार्थ पई ए रक्ताक्त संघर्ष होइथिला एथिरे प्रमुख भूमिका ग्रहण कला एसे ना एथिरे प्रमुख भूमिका से ग्रहण करुथिला केवल ए धर्मीय भावना आ गोटे कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट मध्यरे जो मत पार्थक्य बा अंतर्द्वंद प्रथम समस्त रोमियो कैथोलिक धर्म ग्रहण करथिले किंतु जेतेबेले प्रोटेस्टेंट मतवादर प्रचार चलेला सेतुर अनेक प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबी होवा पई आग्रह प्रकाश कले जहा फल रे एही दुई संप्रदाय भितर मध्य गोष्ठी संघर्ष आरंभ होला एही परि भाबरे आउ गोटे तत्कालीन कारण कोन यार तत्कालीन कारण होला ऑस्ट्रिया विरुद्ध रे बोहेमिया विद्रोह ही एही 30 वर्ष युद्धर मुख्य कारण बा तत्कालीन कारण बा डायरेक्ट कॉज थिला प्रत्यक्ष कारण आउतरे कहि दोची ऑस्ट्रिया विरुद्ध रे बोहेमिया रो जो विद्रोह जो शत्रुता एही 30 वर्षीय युद्धर मुख्य कारण थिला ताहले आमे ए सब कारण आहुरी तो अनेक कारण सब रहिछि ए सब कारण को भित्ति करी यूरोप महादेश रे 30 वर्षीय युद्ध अतिबाहित हेथिला एवं ये गोटिए पर्याय सरी नथिला एही 30 वर्षीय युद्ध भिन्न भिन्न पर्याय दे गति करथिला ताले प्रथम पर्याय केबे हेतिला ना प्रथम पर्याय हेतिला 1618 रु प्रथम 1618 रु 1624 जहा को अन्य पक्ष रे कहा जाउथिला बेहेमिया बेहेमियार समर सेमिति एही 30 वर्ष युद्धर द्वितीय पर्याय आरंभ होइथिला 1625 रु 1629 ख्रीष्टाब्द मध्यरे जहा को कहा जायथिला डेनमार्क युद्ध से भली एही 30 वर्ष युद्धर तृतीय पर्याय हेतिला 1630 रु 1635 जहा को स्वीडन युद्ध बोली कहा जाउथिला यार चतुर्थ पर्याय युद्ध होइथिला 1635 रु 1648 जहा को फ्रांस रो युद्ध बोली मध्य कहा जायतिला तेबे ए चारोटी पर्याय देई भिन्न भिन्न स्थान रे एही 30 वर्षीय युद्ध गति करिथिबारु एहार नामकरण भिन्न भिन्न करा जायछि डेनमार्क युद्ध स्वीडन युद्ध फ्रांस युद्ध एई परि भिन्न भिन्न नामकरण एहार करा जायछि ताले ए जो 30 वर्षीय युद्ध हला ए 30 वर्षीय युद्ध रे बा युद्ध परे जो वेस्टफालिया शांति चुक्ति हला वेस्टफालिया शांति चुक्ति परे यूरोप रे बा 1648 ख्रीष्टाब्द रे आरंभ होला राष्ट्रीय व्यवस्था जा फल रे कि क्रमशः धर्म को नहीं जो विद्वेष मनोभाव थिला जो शत्रुता लगी रही थिला से सब आस्ते 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 अवसान होगा लगिला शिक्षा संस्कृति कला वाणिज्य शिल्प कृषि इत्यादि मध्य से सब गुड़िक यूरोप रु जदिबा प्राय निश्चिन्न हो आसीथिला किंतु परवर्ती पर्याय रे से सब गुड़िक आस्ते आस्ते से सब उत्थान हेथिला किंतु प्राथमिक पर्याय रे युद्ध समय रे ये सब गुड़िक अवहेलित अवस्था रे रहिथिला निष्पेषित अवस्था रे रहिथिला एही युद्ध जोगु प्रुसिया राज्य रे मध्य सृष्टि हला जहा परवर्ती काल रे जर्मनी राज्य रो एकत्रीकरण हला हमें जानि जे जर्मनी भिन्न भिन्न राष्ट्र होई अलगा अलगा कि पृथक पृथक भाव रे रहिथिला जहा को कि एकत्रीकरण करा जायथिला जहार मुख्य भूमिका रे थिले चांसलर बिस्मार्क ताहले एही 30 वर्षीय युद्ध रे निष्पेषित अत्याचारित होई अनेक कैथोलिक संप्रदाय अनेक प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबी माने
प्रति सबुदिन चिरदिन यूरोप महादेश को छाड़ी अन्य स्थान को शांति रे बसवास करने सब चली जाते उपनिवेश स्थापन और वाणिज्य व्यवस्था उन्नति आनी विरक्ति भाव हो जो 30 वर्षीय युद्ध लगिला भयंकर युद्ध लगिला अर्थनैतिक अवक्षय है शांति मिलला नहीं ऐक्य भाव जातीयता भाव ये सबुर अदृश्य हो गला जहाँ फल कि अनेक अधिवासी माने विरक्ति भाव हो से स्थान सब परित्याग करी नूतन स्थान रे पदार्पण कले नूतन भाव से जीविका निर्वाह कले एवं सेठारे सेमानंकर उपनिवेश स्थापन कले सेठारे सेमानंकर वाणिज्यवाद आरंभ होला सेठारे सेमान शिल्पजात काम आरंभ होला जहाँ फल कि सेमाने एक नूतन आलोक रे पदार्पण करथिले ए युद्ध जोगु जदिबा सेमाने प्राथमिक अवस्था रे अवहेलित होइतिले किंतु परवर्ती पर्याय रे सेमाने नूतन स्थान रे पदार्पण करी तांकर नूतन जीवन यापन आरंभ करिबारे सामर्थ्य हासिल करथिले तेबे ए जो युद्ध होइतिला ए युद्ध विजय विजित बा विजेता मानक मध्यरे गोटिए द्वंद्व सृष्टि मध्य करितिला यह स्पेन र प्रतिपत्ति को चिरदिन पूरा प्रतिहत करदेला स्पेन रे अराजकता देखादेला लुंठन वातावरण देखादेला एवं एउठारे भी धन जीवन कोठी हेले सुरक्षित होई रहला नाही सैनिक मानकर पेशा ही निजर जीवन को सुरक्षा देबा एवं सैनिक कहले शेष को जड़े डकायत बा नरहंता को बुझौला तार परिस्थिति एमती आसीगला एवं 30 वर्षीय युद्ध आधुनिक जुगर सबुठार गोटे मर्मदुंत युद्ध थिला जहाँकि देशर बा पाश्चात्य जगतर बा महादेशर गोटे अपूरणीय क्षति आनी देथिला ताहले स्पेन पराजयर कहीं स्पेन पराजय है जदि बा सम्राट फर्डिनांड एवं सामग्री इसाबेला समय रे स्पेन रो उन्नति हेतिला तार उन्नति चरम सीमा रे पहुंची थिला समस्त जानि परिथिले जे ए सम्राटंकर महनीयता रही जहांको जोगु ये स्पेन पाश्चात्य जगतर गोटे शीर्ष स्थान को स्पर्श करथिला किंतु परवर्ती पर्याय रे तांको भितरे कोन हला स्पेन रो जहा फल रे कि स्पेन रो एही 30 वर्षीय युद्ध रे अधोगति हला जो युद्ध हेतिला तार मुख्य कारण जे पाश्चात्य जगत रे स्पेन राजवंश मुख्य हबो ना फ्रांस रो राजवंश मुख्य हबो यहा को केंद्र करी ए युद्ध हला ए युद्ध रे स्पेन रो जो पतन हला काहे कि पतन हला स्पेन रो यार मुख्य कारण गुडी को हला स्पेन वासी माने उच्च भिलासी थिले तेनो से माने ओवर कॉन्फिडेंस हेतिले जे स्पेन रो हाब्सबर्ग वंशीय शासक माने असंभव रूपे से माने निश्चित भाव उच्चा भिलासी थिले सेमानंकर साम्राज्य पिपासा निज पई ही काल करथिला एवं प्रथमार्धरे बा 1600 शताब्दी रे प्रथमार्धरे यूरोप रे स्पेन साम्राज्य एते विशाल थिला जे तार दक्षता सहित शासन करिबा केही समकक्ष नथिले या छडा स्पेन रो शासनकर्ता माते आस्ते आस्ते दुर्बल एवं अपरिपक्व हेले जहा फल रे कि स्पेन वासी मानकर ए उच्चाभिलाष चिंताधारा एवं स्पेन रो परवर्ती शासक मानकर दुर्बलता ही स्पेन रो पतन आनी देथिला आउ गोटे हला जातीय ऐक्य भावर अभाव स्पेन रे सेमानंकर देशप्रीति जाति प्रीति राष्ट्र प्रीति रे मध्य अभाव देखादेला सेमानंक मध्यरे कलह देखादेला सेमानंक मध्यरे आस्ते आस्ते विवाद मध्य देखादेला जदि बा विशाल स्पेन रे विभिन्न अंचल विभिन्न जातिर लोक बसवास करुथिले सेमानंकर मध्यरे सामाजिक ऐतिहासिक अर्थनैतिक धार्मिक राजनैतिक आचार व्यवहार रे बहुत असामान्यता रहिथिला जहा फल रे एही विशाल साम्राज्यर सर्व गणग्रणीय एकक जातीयता भाव उद्रेक आउ हेई पारिला नाही जोथि जो स्पेन रो पतन होला आउ गोटे हला जटिल समस्या गोटे डिफिकल्ट चैलेंजेस इटा कोन ना स्पेन रो शासक माननकु शत्रु पक्ष द्वारा सृष्टि करा जाउथिबा अनेक जटिल समस्यार सम्मुखीन हेबाकु पड़ितिला सेगुडी को मध्यरु तुर्की माननक सहित युद्ध नवजागरण आंदोलन विदेशी माननकर विरोध कठिन अर्थनैतिक समस्या
ये सबू स्पेन पाई गोटे गोटे विराट चैलेंजर विषय हेतिला जोथि जोगु स्पेन गोटे समस्या जाल रे छंदी हेई पड़िथिला तेणु छंदी हेला परे सेथिरु फिटिबा ता पाई तत्कालीन समय रे बहु कष्ट होला जोथि पाई विशाल स्पेन रो पतन होला तापर हेला गोटे कोन ना सामाजिक असमानता बा सोशल इनइक्वालिटीज और द इम्बैलेंस इन सोशल सिस्टम तेरे स्पेन रो सबु सामाजिक अर्थनैतिक अधिकार मान केवल सम्राट एवं तांको परिषद भितरे सीमित थिला समाजर निकृष्ट वर्ग बा निम्न वर्ग लोकमानंकर अवस्था अति दयनीय थिला तेणु स्पेन समाज विन्यास रे आदौ संतुलन किछि रहु नथिला एवं सदा बेले निम्न वर्गर लोकमानंको आंदोलन करिया पई कुआ जाउथिला एवं स्पेन को सुदृढ़ करिया पई आवश्यकता थिबा सामाजिक एकतार घोर अभाव मध्य देखा देथिला एपटे सामाजिक असमानता एवं परस्पर भितर एकतार अभाव सहित केवल आंदोलन को उल्लाउथिले निम्न श्रेणीर लोक माने जमीदार श्रेणीर लोक माने एथिपाई पछबुंचा देउथिले जहां ही स्पेन रो पतन पाई पथ सुगम करथिला आ गोटे ला फिलिप द्वितीयकर दुर्बल उत्तराधिकारी जेते बेले स्पेन रो सम्राट उभय फिलिप तृतीय एवं फिलिप चतुर्थ विशाल स्पेन साम्राज्य रो सुरक्षा पाई सिंहासन रे आसीन हेले सेते बेले सेमानकर दुर्बलता परिप्रकाश होला सेमाने एते बड़ विशाल साम्राज्य को प्रचलन करिवा पाई बा शासन करिवा पाई अक्षम हेतिले फल रे विशाल साम्राज्य स्पेन घुसुड़ी पड़िला नेक्स्ट हला आमे पढ़िले ना 30 वर्ष युद्धर मर्मदूत दुर्घटना बा मर्मदूत फलाफल ए समय रे स्पेन को बहु समस्या दे गति करबा पड़ुथिला अनेक सैनिक मानकर मृत्युहात हेतिला अर्थनैतिक व्यवस्था रे एक विराट अवनति आसीथिला तेणु ए सब कार्यक्रम ही स्पेन को अवक्षमुखी कर देथिला शेषरे स्पेन रो जनसंख्या रो मध्य ह्रास जेते बेले एभली परिस्थिति देखा देला अनेक सैनिक मृत्युवरण कले अनेक साधारण लोक भी मृत्युवरण कले अनेक नागरिक माने देश परित्याग कले जहा फल रे कि स्पेन रो लोक संख्या जनसंख्या क्रमशः कमी आसिला आर्थिक अभाव अनटन देखा देला विपुल अर्थ अपव्यय खाली युद्ध रे हला जहा फल रे लोक मानक पाखरे साधारण प्रजा मानक पाखरे जनमंगल पाई कौनसी अर्थ पहुंची पारिला नाही बाध्य होई स्पेन नागरिक माने से स्थान परित्याग कले फल रे जनसंख्या रे अभाव मध्य देखा देला विलास व्यसन प्रियता स्पेन वासी माने अत्यंत विलास व्यसनी थिले जो माने कि विलास व्यसन को कौनसी एक समस्या भितर थेले मध्य विलास व्यसन को से माने छाड़ी पारु नथिले किंतु जेतेबेले अर्थनैतिक अधोगति देखा दिला सेतेबेले से विलास व्यसन पाई आ से सुजोग पाइले नाही फल रे सेमाने सेमानंकर मन रे जो जोर थिला देश प्रति पाई जातीयता पाई सेमानंकर मन रे दुर्बलता आसी गेला एवं तापरे त्रुटिपूर्ण राजस्व नीति जेतेबेले स्पेन गोटे समस्या दे गति करूथाय गोटे जटिल समस्या दे परिचालित होउथाय आर्थिक अभाव दे गति करूथाय सेतेबेले राजस्व आदायर मध्य व्याघात हैला उपयुक्त मार्ग रे राजस्व आसी परला नाही जेतेबेले उपयुक्त मार्ग रे राजस्व आसी परला नाही सेतेबेले राजकोष रे मध्य राजस्व रहि परला नाही जहा फल रे कि लोक मानक पई बा देश पई राष्ट्र पई जाति पई राजस्व व्यय उपयुक्त मार्ग रे न होबावरु देशर अधोगति देखा देला तबे ए सब कार्यक्रम को नै जो विशाल स्पेन सृष्टि हेतिला से विशाल स्पेन मध्य आस्ते 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 निम्नगामी हैला तापरे तळे वेस्टफालिया शांति चुक्ति हैला से वेस्टफालिया चुक्ति रे मध्य अनेक संधिपत्र रहिछि अनेक शर्तावली सब रहिछि
तार गुरुत्व मध्य रही एवं से सब तार विभिन्न शर्तावली रही से सब विषय रे आमे आलोचना कले तो अधिक समय लगिबो। तेबे स्पेन रो राष्ट्र व्यवस्था रो नीति नियम ए भली थिला पाश्चात्य जगत रे। तापरे आमे आउ गोटे राष्ट्र को आसीबा ताहला कोन ना फ्रांस। तेबे दीर्घ 116 वर्ष परे 1453 ख्रीष्टाब्द रे इंग्लैंड सहित फ्रांस रो 7 वर्ष रो युद्ध होइतिला जाहाकू 7 वर्ष व्यापी युद्ध बोली कहा जाए। जेमिति इंग्लैंड और फ्रांस सहित 7 इयर्स वार हेतिला 1763 मसिया रे 7 वर्ष व्यापी युद्ध होइतिला। सेमिति 1453 ख्रीष्टाब्द रे बहु पूर्व ये तो 1763 रे हेतिला 7 वर्ष व्यापी युद्ध तार बहु पूर्व 1453 ख्रीष्टाब्द रे 100 वर्ष व्यापी युद्ध होइतिला इंग्लैंड और फ्रांस भितर। एवं ए युद्ध रे जने 19 वर्षीय तरुणी तार जो भूमिका जो थी जोगु फ्रांस इंग्लैंड सम्मुख विजयी होई पारिला। ताहले ये थिला 100 वर्ष व्यापी युद्ध दीर्घ 100 वर्ष धरी यह चली। तापरे लुई एकादश राजत्व कले, अष्टम चार्ल्स राजत्व कले। प्रारंभिक यूरोपीय फ्रांस साम्राज्य यूरोपीय नवजागरण ठारू फरासी विप्लव पर्यंत गोटे मुख्य कापेतीय राजवंश एक शाखा थिबा बुर्बो राजवंश द्वारा शासित हेउथिला। तार बहु परे बा फ्रांस रो प्राचीन राजत्व एंशिएंट रिजाइन जहां कहा जाए प्राचीन काल तो अनेक दिन परे जेतेबेले फ्रांस चतुर्दश लुई द्वारा शासित हला। दीर्घ 72 वर्षर शासन काल फ्रांस इतिहास रे कौनसी जने सम्राट इत्ते दिन धरी शासन करिनथिले। दीर्घ 72 थर शासन करथिले चतुर्दश लुई। से राज्यरु मध्ययुगीय सामंतवाद को लोप करी जने निरंकुश सम्राटनक अधीन रे एक केंद्रीय राज्य व्यवस्था प्रतिष्ठा करथिले जहाकी फरासी राष्ट्र विप्लवर शेष पर्यंत तिष्ठि रहिथिला। ताले चतुर्दश लुईंकर जो 72 वर्ष धरी शासन ताहा गोटे केंद्रीय राज्य व्यवस्था फ्रांस रे प्रतिष्ठा करथिला। तेबे एही शासन काल भितरे फ्रांस रो अधिवासी माने अतिष्ट होई आरंभ करथिले फरासी राष्ट्र विप्लव। 1799 मसिया रे गोटे फरासी राष्ट्र विप्लव हेतिला। एही राष्ट्र विप्लव पछरे राजनैतिक पृष्ठभूमि थिला, पॉलिटिकल बैकग्राउंड थिला। चतुर्दश लुईंकर मध्य भूमिका थिला, पंचदश लुईंकर मध्य भूमिका थिला, षोडश लुईंकर भूमिका थिला एवं माई मेरी एंटोइनीकर मध्य भूमिका थिला। आमे ए विषय रे समस्ते भी जानिचे। धार्मिक व्यवस्थार मध्य किछि भूमिका थिला, सामाजिक स्तर रे किछि भूमिका थिला, साधारण प्रजा मानकर असंतोषर मध्य किछि कारण थिला। एही समय रे किछि प्रज्ञान किछि बुद्धिजीवी मानकर जो उत्थान हेतिला सेमानकर चिंताधारा फ्रांस रो राष्ट्र विप्लव को आमंत्रण करिदेला। ताहले जो फ्रांस रे जो राष्ट्र विप्लव हेतिला यार बीज बपन हेतिला चतुर्दश लुईंकर राजनैतिक कारणरू बा राजनैतिक कार्यरू बा शासन काल। फ्रांस रो राजनैतिक व्यवस्था शासन व्यवस्था दुर्बल राजतंत्र एही जुगंतकारी विप्लवर एक मुख्य कारण थिला। फ्रांस रे जो सम्राट माने शासन करुथिले से माने समस्त थिले पूर्व राजवंशर सम्राट। जो राजवंश निरंकुश राजतंत्र उपरे पर्यवेसित थिला। मुख्यतः फ्रांस रो विप्लव निरंकुश राजतंत्र विरुद्ध रे गोटे राजनैतिक विद्रोह थिला।
ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବିପ୍ଳବୀ ମାନଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା। ତେବେ ପୂର୍ବ ରାଜବଂଶର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାର ନୀତି, ଅନୀତି, କୁଶାସନ ବିପକ୍ଷରେ ଫରାସୀ ଜାତିର ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା ଏହି ବିପ୍ଳବର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର। ରାଜା ଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ, ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ, ବିଚାର ମୁଖ୍ୟ, ସେନାବାହିନୀର ବି ମୁଖ୍ୟ। ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଶର ନିୟମ, ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଅଲଙ୍ଘନୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସାର୍ବଭୌମ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଥିଲା। ଏହି ମତ ଅନୁସାରେ ରାଜାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ସେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦାୟୀ ରହୁଥିଲେ। କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଯଦିଓ ରାଜା ଷୋଡ଼ଶଲୁଇଙ୍କ ରାଜତ୍ୱରେ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ ଥିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ ଏବଂ ପଞ୍ଚଦଶ ଲୁଇ। ତଳେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇଙ୍କର କଣ ଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ନା ଥିଲେ ସେ ଏକାଧାରରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସକ, ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସକ, ଯାହା ଫଳରେ କି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାଙ୍କର ଶାସନଗତ ନୀତି, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମଗ୍ର ଫ୍ରାନ୍ସକୁ, ଫ୍ରାନ୍ସର ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ କବଳିତ କରିଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ ଯେ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ତା ନୁହଁ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ, ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠକୁ ସେ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟୟ କରିପାରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଭିନ୍ନ ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶାସନ ଅତିଶୟ କରିଦେଇଥିଲା। ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ତ୍ରୁଟି ହେଲା ରାଜଧାନୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯୋଉ ରାଜଧାନୀକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ, ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଆସିଲେ ପଞ୍ଚଦଶ ଲୁଇ। ଲୋକମାନେ ଭାବିଥିଲେ, ସାଧାରଣ ଜନତା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଏହି ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନର ଅବସାନ ହେବ ଏହି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇର ଶାସନର ଅନ୍ତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲାନି। ପଞ୍ଚଦଶ ଲୁଇ ଜଣେ ଅନଭିଜ୍ଞ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ତାଙ୍କର ସମୟ କାଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। ପଛକୁ ଟିକିଏ ବି ଚାହିଁଲେନି ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କଣ, ଫ୍ରାନ୍ସର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା କଣ, ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା କଣ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା କିଭଳି